जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 1 श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। ये जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। स्मृतिकारों ने स्पष्ट कहा है, आततायिन्मायान्तं हन्यादेवा विचार्यन नाततायि वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 350 व 351। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचार ही मार डालना चाहिए। आतताई को मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। विशिष्ट स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षेडेते हयाततायिनः। विशिष्ट स्मृति अध्याय 3 श्लोक 19। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतताई हैं। कौरवों में आतताई के सभी लक्षण मौजूद हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की। भीमसेन के भोजन में विष मिलाया। जुए में छलकर पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उनका घोर अपमान किया। इन कौरवों को तो मारना ही धर्म था। फिर भी स्वजनासक्ति से पूर्णतः ग्रसित अर्जुन कहता है कि इन आतताइयों को मारकर पाप ही लगेगा। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य के मोहग्रस्त होने पर भी नग्न खुल्लम खुल्ला कर्तव्यच्युति उसे सहन नहीं होती। वह कोई सद्विचार उसे पहनाता है। यही हाल अर्जुन का हो रहा है। अपने स्वजनों के आतताई होने पर भी वह उन्हें मारने में अब पाप ही देखता है। कहीं स्मृतिकार ने यह भी कहा है, स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। अब अर्जुन इस युक्ति को पकड़कर बैठ गया है और भगवान कृष्ण को ज्ञान जता रहा है। धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। ओम। నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థు మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 1 శ్లోకము 36। హే జనార్దన, ధృతరాష్ట్ర కుమారులను చంపుడిచే ఈ లోకంలోనూ పరలోకంలోనూ మాకు ఏమాత్రము ఇష్టసిద్ధి కలగదు. ఇక కోరిన వస్తువే లభించినప్పుడు సంతోషం ఎలా కలుగుతుంది? అందువలన ఏ విధంగానూ కూడా నేను వీరిని సంహరించాలనుకోవడం లేదు. అయితే శాస్త్రకారులు స్పష్టంగా ఇలా చెప్పారు, ఆతతాయి నమాయంతాం
అన్యాదేవ విచారయన్ నతతాయి వదే దోషం హంతుర్భవతి కచ్చన. మనుస్మృతి 8-350-51. మనకు అపకారం చేసేందుకు వచ్చే ఆతతాయిలను ఏ విధమైన ఆలోచన లేకుండానే సంహరించాలి. ఆతతాయిలను చంపే వారికి దోషమేమీ కలగదు. వశిష్ఠ స్మృతిలో ఆతతాయి లక్షణాలు ఈ విధంగా చెప్పబడ్డాయి. అగ్నిదో గర్ధచ్చేవ శస్త్రపాణి ధనాపహ క్షేత్రధారాపహర్తార్థ చ షడేతే హ్యాతతయినః. ఇళ్ళు మొదలగు వాటిని నిప్పండించేవాడు, విషాన్ని ఇచ్చేవాడు, చేత ఆయుధాలు ధరించి చంపుటకు ఉద్యుక్తులైన వాడు, ధనాన్ని హరించేవాడు, భూమిని ఆక్రమించేవాడు, స్త్రీలను అపహరించేవాడు, ఈ 6 ఆతతాయిలు. కౌరవుల్లో ఈ ఆతతాయి లక్షణాలు ఉన్నాయి. లాక్షాగృహంలో నిప్పండించి వీరు పాండవులను కాల్చివేసే ప్రయత్నం చేశారు. భీమసేనుని భోజనంలో విషాన్ని కలిపారు. జోదంలో మోసం చేసి పాండవుల ధనమంతటిని మరియు సమస్త రాజ్యాన్ని హరించారు. అన్యాయంగా ద్రౌపదిని సభలోకి తీసుకొచ్చి ఘోరమైన అవమానం చేశారు. అటువంటి ఈ కౌరవులను చంపడం ధర్మమే అయినప్పటికీ సృజనాశక్తితో పూర్తిగా వసుడైన అర్జునుడు ఇటువంటి ఆతతాయిలను చంపుడిచే పాపం కలుగుతుందని చెబుతున్నాడు. కర్తవ్యనిష్ఠుడైన మనుషుడు మోహగ్రస్తుడైనప్పటికీ కూడా కర్తవ్యముఖత్వము అతను సహించలేడు. అతడు సద్విచారమునే చేస్తూ ఉంటాడు. అదే స్థితి ఇప్పుడు అర్జునుడికి కలిగింది. అతని స్వజనులు ఆతతాయిలు అయినప్పటికీ కూడా వారిని సంహరించట్లో అతడు పాపమును చూస్తున్నాడు. సయేవ పాపిష్టతోమో యక్ కుర్వాత్ కులనాశనం. ఎవరైతే తన కులాన్ని నాశనం చేస్తాడో అతడు అందరికన్నా పాపాత్ముడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఈ సూక్తిని పట్టుకుని కృష్ణ భగవానుడికి ఇలా జ్ఞానోపదేశం చేస్తున్నాడు. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు ఆతతాయిలు అయినా కూడా వారు నా కుటుంబీకులే. అటువంటప్పుడు వీరిని చంపుడిచే మనకు పాపం కలుగుతుంది, ఇక ఏ విధంగానూ లాభం కలగదు. అందుచేత నేను వీరిని చంపాలనుకోవడం లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. जय गुरुदेव, जय पदे शरणम. हे जनार्दना, धृतराष्ट्राच्या पुत्रांना मारून आपण या जगात किंवा पुढच्या जगात काहीही साध्य करणार नाही. आणि जेव्हा आपल्याला इच्छित गोष्ट मिळत नाही तेव्हा आपण त्याच्याशिवाय आपण कसे आनंद राहू शकतो. म्हणूनच मी त्यांना कोणत्याही प्रकारे मारू इच्छित नाही. स्मृतिकारांनी स्पष्ट म्हटलं आहे, आततायेन मायंत हन्यादेव विचारयः नाताटति विद्यो दोषो हंतु भर्वती कश्चनः. मनुस्मृती अध्याय 8 श्लोक 350-351. अर्थात जो अत्याचारी तुमचे नुकसान करायला येतो त्याला कोणताही विचार न करता मारले पाहिजे. जो अत्याचारी मारतो त्याला स्वतःचा कुठलाही दोष नाही. वसिष्ठ स्मृतीमध्ये अत्याचाराची लक्षणे खालीलप्रमाणे वर्णन केलेली आहेत. अग्निदोध दर्शैव क्षेत्रदार परहताच शस्त्रपणिधानपह षडते हत्ययिन. वसिष्ठ स्मृती 3:19. याचा अर्थ असा आहे की जो व्यक्ती आग लावणारा असतो, विष देणारा असतो, हातात शस्त्र घेऊन मारण्यास तयार झालेला असतो, संपत्ती हिसकावून घेणारा असतो, जमीन हिसकावून घेणारा असतो आणि स्त्रीचे अपहरण करणारा असतो, हे 6ही अत्याचारी आहेत. कौरवांमध्ये अत्याचारांची सर्व वैशिष्ट्ये आहेत. लाक्षा भावनाला आग लावून त्यांना जाळण्याचा प्रयत्न केला होता. भीमसेनाच्या भोजनामध्ये त्यांनी विष मिसळले होते. जुगारात फसवून त्यांनी संपूर्ण पांडव आणि यांचे संपूर्ण राज्य हिसकावून घेतले होते. त्यांनीच अन्यायाने द्रौपदीला भर दरबारात आणून तिचा घोर अपमान केला होता. या कौरवांना मारणे हा त्यांचा धर्म होता. तरीही स्वतःच्या लोकांबद्दल आसक्तीने पूर्णपणे ग्रस्त असलेला अर्जुन म्हणतो की या अत्याचारांना सुद्धा मारणे हे फक्त पापच राहील. कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य जर आसक्तीने ग्रस्त असला तर तो उघडपणे कर्तव्यात आपलं दुर्लक्ष सहन करू शकत नाही.
तो त्याला काहीही इतर चांगले विचार करायला लावून त्याचे पांघरूण आपल्या अंगावर घेतो. अर्जुनाच्या बाबतीतही तसेच घडत आहे. जरी त्याचे नातेवाईक अत्याचारी आहेत तरी त्याला त्यांची हत्या करण्यात पापच वाटते. कुठेतरी स्मृतिकारांनी असेही म्हटले आहे की स एवं पापष्टितम य कुर्यात न कुलनाशनम, अर्थात जो स्वतःच्या कुळाचा नाश करतो तो सर्वात मोठा पापी आहे. आता अर्जुनाने हा तर्क पकडला आहे आणि तो भगवान श्रीकृष्णांनाच ज्ञान देत आहे की धृतराष्ट्रांचे पुत्र जरी अत्याचारी असले तरी जेव्हा ते आपल्या कुटुंबातील सदस्य आहेत तेव्हा त्यांना मारणे आपल्यासाठी पापच राहील आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फायदा नाही. अशा परिस्थितीत मी त्यांना मारू शकत नाही. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഹേ ജനാർദ്ദന, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ ഒന്നും നേടാനാവില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും? ആയതിനാൽ അവരെ ഒരു തരത്തിലും കൊല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മനുസ്മൃതി അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 350-351 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ആതതായിന മായന്തം ഹന്യാ ദേവാ വിചാരയൻ ന തഥായി വിധി ദോഷു ഹന്തുർഭവതി കചൻ. നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്വേച്ഛാധിപതിയെ ഒരു ചിന്തയും കൂടാതെ കൊല്ലണം. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെ കൊല്ലുന്നവൻ കുറ്റം വഹിക്കുന്നില്ല. വസിഷ്ഠ സ്മൃതിയിൽ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: അഗ്നിദോ ഗർദശൈവ ക്ഷേത്രധാരാപഹർദ ച ശസ്ത്ര പാണിർധനാപഹ ഷഡേതേ ഹ്യാതതൈനഃ. വസിഷ്ഠസ്മൃതി 31:19. തീ കൊളുത്തുന്നവൻ, വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, കയ്യിൽ ആയുധം വെച്ച് കൊല്ലാൻ തയ്യാറായവൻ, സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നവൻ, ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുന്നവൻ, ഒരു സ്ത്രീയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ, ഈ 6 പേരും സ്വേച്ഛാധിപതികളാണ്. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും കൗരവരിലുണ്ട്. അവർ ലക്ഷഭവനത്തിന് തീയിട്ടു, പാണ്ഡവരുടെ മിതസേനയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു. ചൂതാട്ടത്തിൽ വഞ്ചിച്ച് പാണ്ഡവരുടെ മുഴുവൻ വില്ലുകളും രാജ്യവും അവർ അപഹരിച്ചു. അന്യായമായി ദ്രൗപദിയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവളെ ഗുരുതരമായി അപമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള കൗരവരെ കൊല്ലുന്നത് അവരുടെ ധർമ്മമായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം ജനങ്ങളോടുള്ള മമതയാൽ പൂർണ്ണമായും അകപ്പെട്ട അർജുനൻ ഈ സ്വേച്ഛാധിപതികളെ കൊല്ലുന്നത് പാപം മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു. കർത്തവ്യബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആസക്തി ബാധിച്ചാലും നഗ്നമായും പരസ്യമായും കടമ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൻ സ്വയം നല്ല ചിന്തകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. അർജുനൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ഇതാണ്. സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ പീഡകരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കരുതുന്നു. സ്മൃതികളിലും എവിടെയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: സ ഏവ പാപിഷ്ഠതയോ യഹ കുര്യാത് കുലനാശനം. സ്വന്തം വംശത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപി. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ഈ യുക്തി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ പീഡകരാണെങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നത് പാപമായിരിക്കും. ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. हे जनार्दन, धृतराष्ट्रक पुत्र सबके मायर करने अलोक में हमरा कोनो लाभ हैत, आने परलोक में कोनो सिद्धि भेटत. जखन इच्छित फल प्राप्ते नहीं हैत तखन प्रसन्नता कोना हेते. तैं हम हिनका सबके मारब नहीं चाहैत छी. स्मृतिकार सब कहैत छथि: आततायिन मायांत हन्या देवा विचारयन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन. आतताई अर्थात पीड़ित करे बला के बिना बेसी विचार के ने मार देबाक चाही. एहन आतताई के मारा बला के कखनो कोनो दोख नहीं लागैत अछि.
वशिष्ठ स्मृति में आतताई के ई सब लक्षण बताओल गेल अछि। अग्निदो गर्दश्चैव क्षेत्रदारा पहरता च शस्त्रपाणिर्धनापह षडेते ह्यातत्यनः। आग लगौनिहार, बिख देनिहार, हथियार उठाकर आक्रमण करनिहार, धन खेत पथार आ स्त्री के छिन्निहार, ई सब आतताई कहल जाइत अछि। कौरव सब में ई सबटा लक्षण विद्यमान छल। लाक्षागृह में आगि लगाकर पांडव के जराबऽ के प्रयास केलनि, जुआ में ठगि कऽ संपत्ति आ राज्य छीनलनि, द्रौपदी के सभा में आनि कऽ अपमान केलनि। एहन अपराधी लोकनि के दंड देब धर्म छल, मुदा अर्जुन स्वजन मोह में डूबल अछि। ओ कहैत छथि, एहन आतताई सबके मारब पाप अछि। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य जखन मोहग्रस्त भऽ जाइत अछि तऽ ओ कर्तव्य त्याग के नहि सहि सकैत अछि। ओ ओकरा कोनो सद्विचार पहिरा दैत अछि। अर्जुनक स्थिति एहने अछि। ओ अपन स्वजन सबके अति क्रूर आतताई भेला पर सेहो एहन लोक सबके मारब आप पापे बुझैत अछि। स्मृतिकार सब इहो कहने छथि, स एव पापिष्ठ तमो यह कुर्यात कुलनाशनम। अपन कुल के नाश करऽ वाला सबसँ पैघ पापी होइत अछि। आब अर्जुन एहि बात के धऽ लेने अछि आ भगवान श्री कृष्ण के अपन ज्ञान देखबैत कहैत अछि, धृतराष्ट्र के पुत्र सब आतताइयो भेला पर हमर कुटुम्ब छथि, तखन तऽ हिनका सबके मारला पर हमरा पाप हैत, लाभ कोनो तरहे नहीं हैत। एहि अवस्था में हम हिनका सबके नहीं मारऽ चाहैत छी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।